Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National. So one question bothers everyone: how to cover more current affair and retain current affair in less time. Time is always limited, and current affair is a subject which has unlimited inputs. So how I can perform better than others? If I have the paucity of times, others are also having the paucity of time. And if they are having time, I am also having the time. So both of us, my competitor and I, are placed in same circumstances. But how to outmaster my competitor? So we will discuss some techniques that can be handy for you and helpful for you to uh, do this thing. Now, some people try to cover current affair through newspapers. It is a very exhaustive system, and sometimes you are not able to lay hand on important news. So, lot of energies are wasted by trying to acquire current affair from newspaper. My advice is you should have some source where such material is available in consolidated shape, and this PDFs, that is usually price PDFs, they become very handy for us if we use them. I have suggested you a very good link. Click the link, you will land up on an app. Download the app and take 2022 plan. Apply coupon code AA03 to have 10% off. Now here you are provided with monthly PDF, weekly PDF and daily PDF. Some of you may be wondering that such material is also available free of cost. Why we should buy? Because the material that is available free may not be exhaustive, may not be detailed. Maybe some portion you are getting, other you are missing. But once you subscribe, then you get the entire material. So in competition, having higher knowledge than your competitor is very important than only having knowledge. So always go for a paid material so that you have exhaustive material. This is one. First is acquiring the source. Once you acquire the source, second step is fix certain hours of study daily for current affair, because current affair comes in every paper. So dedicate at least 1 hour or 2 hours. Some candidates, they make a error that they give morning time to current affair. Avoid this. Morning hour should be used to do the mock test when you are fresh. Current affair can be pushed to the late evening or late night exercise. That means once you are done with every step, in the available time you will read the current affair. Sometimes reading current affair is very boring. This is boring. So take proper rest in between. There is no need to read current affair at a stretch for 2 hours. You can break your timing in 10-15 minute slot. Say 10-15 minutes read, have a break of 5 minutes. Then 10-15 minutes reading, have a break of 5 minutes. 10-15 minutes reading, have a break of 5 minutes. So by this you can improve your efficiency of retention. Secondly, when you read, you feel I am not able to retain. Don't bother about this concept. If you are giving any input to your brain, it is fixed there. So you will be able to recover from there when question comes from the examination. So don't give too much of credence or think too much about retaining. Sometimes I get the feeling I am go on reading, I am not able to recall anything. This is a natural process. Don't bother about this. Simply do your work, read and read. This is one. Another third aspect is, once you have purchased a good source, you have dedicated the time. Third is develop habit of fast reading. Fast reading always helps you. Fast reading means when I am reading a stanza, there are certain words which has no meaning as far as current affair is concerned. This may be having meaning to form a sentence. Say this is given, then such and such is going to go there. Now certain words are verbs, certain words are adjectives. We don't read those. Simply read the information, because current affair means information. So fast reading means I should only put an eye on the information and read it.
put a information, eye on a information, read it. And with practice, we develop this habit. Means skipping some portion of the reading and retaining some portion of the reading. This is called fast reading. So the moment you will be regular in reading the material, you will automatically develop the habit of reading fast. Then sometimes monthly PDFs are very handy. Say I am doing daily PDF, then weekly PDF, and then monthly PDF. I should go for either of these. That means if I am having a completed month material at one go, I can use that. Completed material of week, I can go for that. And if I want to go for daily, I can go for this. So adopt one method. Means you should pick either of these three. Only if time permits, then go for two set of things. Otherwise, you should focus on one set of things, either monthly or weekly or daily. But sometimes what happens is I am having monthly up to say May or June, but I have to cover June and July also. Then monthly wherever it is available, and thereafter weekly or daily PDF I should read. So selective reading, fast reading, and don't bother about whether I am able to retain or not. This will definitely improve your रीडिंग स्किल्स एंड रिटेंशन ऑफ करंट अफेयर्स. गॉड ब्लेस यू ऑल. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. काफ़ी कैंडिडेट्स की ये समस्या रहती है कि सर करंट अफेयर कैसे कवर करें, बहुत ज़्यादा है, क्या करें. अब इसमें एक चीज़ हमें समझनी है कि मैं एक एग्ज़ाम में बैठ रहा हूँ और मेरा कंपटीटर भी एग्ज़ाम में बैठ रहा है. अगर मेरे पास 2 घंटे हैं, उसके पास भी 2 घंटे हैं. मेरे पास 24 घंटे हैं, उसके पास भी 24 घंटे हैं. तो इसलिए इस बात पे मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. मुझे क्या करना है कि जो मेरे पास अवेलेबल टाइम है उसका मैं बेस्ट यूज़ कैसे कर सकता हूँ. तो सबसे पहला मैंने क्या काम करना है कि मैंने एक अच्छा सोर्स करंट अफेयर का एक्वायर करना है. कई बार हम क्या करते हैं, मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ना चाहते हैं. मान लीजिए मैं न्यूज़पेपर से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, सारी न्यूज़ नहीं पढ़ पाता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम मेरा लग जाता है और मेरे को इंफॉर्मेशन गैदर ही नहीं हो पाती है. देन किसी ने कोई भी मटेरियल मुझे भेज दिया, मैं उसको पढ़ना शुरू कर लेता हूँ. मैं ऑर्गेनाइज नहीं हूँ, कई बार डुप्लीकेशन भी हो जाएगी उसके अंदर. तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम जो अवेलेबल पीडीएफ्स हैं बाज़ार के अंदर, जो पेड पीडीएफ्स हैं, उसको हमें एक्वायर करना चाहिए. क्योंकि जो ये सर्विस प्रोवाइडर है, इसने आपके लिए मेहनत की है. जो न्यूज़पेपर अदर सोर्सेज हैं वहाँ से न्यूज़ छांट के एक जगह सिस्टमेटिक वे से प्लेस कर दी है. तो ये न्यूज़ को छांटना, न्यूज़ को प्लेस करना, ये काम आपने एक थर्ड आदमी से करवा लिया, उतना टाइम आपका बच गया. आपने पेड पीडीएफ ले लिया, मैंने आपको एक रिकमेंड किया हुआ है पेड पीडीएफ. इसके अंदर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है. इस लिंक को क्लिक कर लेंगे, एक ऐप पे पहुंचेंगे, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, 2022 का प्लान ले लेंगे, कूपन कोड AA03 लगाएंगे, 10% आपको ऑफ आ गया. अब आपके पास मटेरियल आ गया. इसके अंदर मंथली पीडीएफ आ गई, वीकली पीडीएफ आ गई, डेली पीडीएफ आ गई. अब कई लोग कहते हैं सर फ्री में मिल रहा है मटेरियल, हम क्यों खरीदें. इसमें दिक्कत क्या होती है, जो फ्री में आपको मिल रहा है वो पूरा नहीं है. किसी के पास जितना है उसने डाल दिया उस ग्रुप के अंदर. अब आपके कंपटीटर के पास कंप्लीट मटेरियल है, आपके पास इनकम्प्लीट मटेरियल है. तो आप समझ सकते हैं, एक ज़्यादा पढ़ के जाएगा, एक कम पढ़ के जाएगा, और कंपटीशन बहुत टफ है. आधे नंबर के अंदर लोग सेलेक्ट या रिजेक्ट हो रहे हैं. तो क्या मुझे ये रिस्क लेना चाहिए? मेरा कहना है नहीं. आप पेड पीडीएफ लीजिए, ताकि कम से कम मटेरियल तो आपके पास कंप्लीट है, एक चीज़ तो कंप्लीट है. अब आपने सब्सक्राइब कर दिया, आपके पास ऑटोमेटिकली वो मंथली, वीकली, डेली पीडीएफ में आ रहा है. तो एक तरफ से आप बेफिक्रे हो गए कि हाँ मेरे पास मटेरियल पूरा है. अब आपके पास मटेरियल आ गया. सेकंड स्टेप आपने क्या करना है? सेकंड स्टेप आपने ये करना है कि डेडिकेट कर रहे हैं कुछ घंटे पर डे, 1 घंटा 2 घंटे रोज के आप करंट अफेयर पे लगाएं. काफ़ी लोग गलती करते हैं, करंट अफेयर को सुबह सुबह टाइम देते हैं. ये आपका गलत तरीका है, क्योंकि सुबह का टाइम है कूल माइंड का, जिसके अंदर आपको मॉक टेस्ट करना चाहिए, ताकि आपकी एफिशिएंसी आए, आपको पूरे दिन का पता हो कि मेरे में क्या कमी है, आज मुझे पूरे दिन क्या करना है. तो दिन की शुरुआत करंट अफेयर से मत करिए आप, क्योंकि ये बोरिंग है. दिन की शुरुआत आप करिए मॉक टेस्ट से, अपने को इवेल्युएट करिए. इवेल्युएट करने के बाद सारा दिन बाकी सब्जेक्ट पे लगाइए, और फैग एंड के अंदर आप जाइए करंट अफेयर पे. अब करंट अफेयर आपके पास है, 1 घंटा 1.5 घंटा आपने डेडिकेट किया हुआ है.
यहाँ पर क्या होगा कि आपने मान लो मंथली पीडीएफ से पढ़ना है तो मंथली से पढ़िए, वीकली से पढ़ना है तो वीकली से पढ़िए, डेली से पढ़ना है तो डेली से पढ़िए। तो आइदर ऑफ द सोर्स आप पहले पिक कर लीजिए और उसको पढ़ना शुरू करिए। कई बार क्या होता है कि 2 घंटे मैंने रखे करंट अफेयर के, लगातार पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तो इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। 15 मिनट पढ़े, 5 मिनट रेस्ट कर लिया, 15 मिनट पढ़े, 5 मिनट रेस्ट कर लिया, फिर 15 मिनट पढ़े, 5 मिनट रेस्ट कर लिया। उससे क्या होगा, आप बोर भी नहीं होंगे और आप धीरे धीरे कुछ रिटेन करते जाएंगे। अब जब हम पढ़ रहे होते हैं तो एक हमें फीलिंग आती है कि रिटेन तो हो ही नहीं रहा, पढ़े जा रहे हैं, कुछ याद ही नहीं रह रहा। ये फीलिंग है। वास्तव में दिमाग को जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो उसको स्टोर कर रहा है। तो जब आप एग्जाम में जाएंगे वो ऑटोमेटिकली इस इंफॉर्मेशन को रिलीज करेगा। तो इस वाले एस्पेक्ट पे ज़्यादा टेंशन मत लें, ज़्यादा चिंता भी ना करें, अपना काम करें। अपना काम क्या है, हमने पढ़ते रहना है। तो आप इसमें पढ़ते रहिए। फिर पढ़ना कैसे है, इसके अंदर फास्ट रीडिंग की हैबिट हमें डेवलप करनी है। फास्ट रीडिंग का मतलब क्या होता है, एक सेंटेंस के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है और कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन के वर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे हमने ये कहा कि मिस्टर सच एंड सच इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब नाम और प्रेसिडेंट ये 2 इंपॉर्टेंट है, बाकी इंफॉर्मेशन सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए। तो फास्ट रीडिंग में क्या होता है कि कुछ शब्दों को हम स्किप करते हैं, कुछ शब्दों को हम पढ़ते हैं। ये प्रैक्टिस से आता जाता है। तो जब भी हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं उसमें सेंटेंस पूरा करने के शब्द हैं और कुछ शब्द हैं जो इंफॉर्मेशन के हैं। तो क्योंकि हम करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश की तैयारी नहीं यहाँ पे कर रहे हैं, तो हमें उन शब्दों को पिक करना है जो इम्पोर्टेंट है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे जब आप एक पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसमें 10 लाइनों के अंदर आप 4 चीज़ें पढ़कर ही उस पूरे स्टैंजा का मतलब समझने लग गए हैं। तो ये आपने हैबिट डालनी है और ये हैबिट डलेगी जब हम कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हैं। तो कंटिन्यूस पढ़ते रहना है। तो ये आप तरीके अपना के देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अच्छा सोर्स मैंने आपको दे दिया है, इसको ज़रूर ले लें आप, क्योंकि कई बार क्या होता है छोटे मोटे खर्चे को हम अवॉइड कर जाते हैं, बाद में पछताते हैं। कई बार 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से रह जाते हैं। अगर एग्ज़ाम रह जाके मतलब हमारा 6-7 लाख रुपए की जॉब हमारे हाथ से निकल गई साल की। इस समय हमें लगता है कि कहीं से भी मिल रहा है करंट अफेयर, चलो हम फ्री में काम चला लें। ठीक है, ये विचार हर आदमी की अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, मैं ये बात को मानता हूँ और मैं कोशिश भी यही करता हूँ कि वो सोर्सेज आपको बताएं जो कंपैरेटिवली सस्ते भी हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं। इसीलिए अब बहुत चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि पैसा बहुत डिफ़िकल्ट है आज के टाइम के अंदर लोगों को अफोर्ड करना, पर कई जगह कंपल्शन है। अब मान लीजिए मैं सड़क पर खड़ा हुआ, मैंने एक कोल्ड ड्रिंक पी, 30 रुपये खर्च हो गए। अगर 30 रुपये महीना लगा के मेरे पास एक अच्छा सोर्स आ जाता है जहाँ से मैं करंट अफेयर तैयार कर सकता हूँ, या 40 रुपये महीना लगा के या 50 रुपये महीना लगा के, तो मुझे उसको एक्वायर करना चाहिए, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट है। हम एक कोल्ड ड्रिंक स्किप कर सकते हैं, हम एक चाय या कॉफ़ी स्किप कर सकते हैं, मगर अपना जो एक अच्छा सोर्स है मटेरियल का, उसको हम स्किप करके हम अपने लिए रिस्क ले रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा हमें कई जगह हम मतलब इन चीज़ों में चूक जाते हैं। हमें लगता है यार ये बच जाए, जो जहाँ नहीं बचाना वहाँ बचा लेते हैं, जहाँ बचाना चाहिए वहाँ खर्च कर देते हैं। तो इसको थोड़ा प्रूडेंट आप चलेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ थोड़ा बहुत हमें स्पेंड भी करना पड़ सकता है, मगर उससे जो आउटपुट आएगी वो मल्टीफोल्ड आएगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।